सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत ही संवेदनशील राष्ट्रीय महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो करोड़ों देशवासियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय सभापति जी, भारत नदियों का देश है और भारत में 20,600 नदियां विद्यमान हैं। ऐसे में उज्जैन जो सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, वहाँ 2028 में कुंभ का मेला, जो अवंतिकापुरी का एक महापर्व भी है और देश की करोड़ों जनता का आस्था का प्रतीक भी है। लेकिन बड़े खेद के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा, जिसके तट पर करोड़ों श्रद्धालु संत महात्मा शाही स्नान के लिए आएंगे, ऐसे में वहां पर इंदौर से कान नदी का अत्यंत ही जहरीला और दूषित पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। उसकी जो पवित्रता है, उसकी पहचान उसकी वजह से दूषित हो रही है। उज्जैन औद्योगिक नगरों का दूषित जल भी वहां पर उस नदी में बह रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि नर्मदा शिप्रा लिंग का स्थायित्व शिप्रा को केवल पर्व का नहीं बल्कि स्थायी रूप से नर्मदा जी के जल से प्रभावमान बनाया जाए। इसके लिए नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के बजट और क्षमता के अविलंब वृद्धि की जाए। शून्य सीवरेज डंपिंग और केंद्र सरकार नमामि गंगे की तर्ज पर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करे, ताकि 2028 के पहले एक भी गंदा नाला शिप्रा नदी में ना मिले। शिप्रा शुद्धिकरण मिशन शिप्रा के उद्गम स्थल कंकराबाड़ी से लेकर उज्जैन तक नदी के पुनरुद्धार हेतु एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए और इसका निष्कर्ष निकाला जाए। महोदय, सिंहस्थ कुंभ मेला एक मेला नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक आस्था का समागम है। यदि हम अपने तीर्थों की नदियों को शुद्ध नहीं रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। अतः मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि निर्मल शिप्रा, अविरल शिप्रा संकल्प को राजीव शुक्ला जी, श्रीमान संजय कुमार झा, I rise to draw the urgent attention of this House to the unregulated exposure of children to social media. In 2025, Australia enacted a law prohibiting under 16 from major platforms after a study showed 96% of children aged 10 to 15 use social media and 7 in 10 encountered harmful content. In India, a 2025 local circle study found that 82% of children aged 14 to 16 can operate smartphones. Only 57% use them mainly for education, and 76% access social media. Media research indicates 11 to 37% shows problematic use, causing language and communication setback, social and emotional learning, nearly poor motor development, disrupted sleep, and reduced focus. As a countries worldwide evolve policy to regulate children's exposure to social media, I strongly support deliberation in this House to curb excessive screen time among toddlers, pre-teenagers and teenagers. This is because the current literature on screen time exposure and children development broadly suggests that excessive screen use in early childhood is negatively associated with developmental outcome among children. While digital classrooms were unavoidable during pandemic, parents and school administration must actively monitor duration and content quality. According to the Indian Academy of Pediatric Guideline
on screen time among children, very early exposure to screen-based media and excessive screen time seems to be widely prevalent among Indian children. Also, a new study published based on survey of 3,624 parents across 5 Indian states found that screen exposure among children aged 2 to 5 far exceed the World Health Organization guideline. Such findings underscore the need for timely safeguard to protect development outcome. To begin with, smartphone being ubiquitous device in Indian household with over 85% of Indian household owning smartphones, they are used by children merit regulation. The House may consider specifically debating whether smartphone packs should carry a statutory use advisory. The Economic Survey 2025-26 has flagged the rapid rise of digital addiction and screen-related mental health problem as a major healthcare issue, particularly among children and adolescents. A timely intervention to safeguard the developmental milestone of India's adolescents is essential to leverage India's demographic dividend in realizing the goals of Viksit Bharat 2047. प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। इन दिनों जीरो आवर में नाम आना लॉटरी लगने जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूं। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है आईआईटीज, आईआईएम्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट, लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। है महगाव ठहराव के अभाव में भदोही, जौनपुर, प्रयागराज क्षेत्र की जनता को लगभग 60 किलोमीटर दूर अन्य स्टेशनों पर जाना पड़ता है, जिससे समय व धन की अनावश्यक हानि होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि उक्त चारों ट्रेनों का ठहराव उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में स्थित जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्रीमान नीरज डांके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान में सिरोही जिले के माउंट आबू की अरावली पर्वत श्रृंखला की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की गोद में स्थित विश्व विख्यात देलवाड़ा जैन मंदिर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ये मंदिर भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला, अद्वितीय संगमरमर शिल्प कला तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता के अनुपम उदाहरण हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यहाँ 5 श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, जिनमें विमल वसई तथा लून वसई के मंदिर अत्यंत ही कलात्मक एवं विशिष्ट हैं। अन्य मंदिरों में महावीर स्वामी मंदिर, पीतलहर मंदिर तथा पार्श्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार वर्ष 1031 ईस्वी में 1500 शिल्पियों व 1200 श्रमिकों के 12 वर्ष अथक प्रयासों एवं 18.53 करोड़ रुपए की लागत से श्वेत संगमरमर के पाषाणों से निर्मित इन मंदिरों की छतों, गुंबदों, तोरण द्वारों की अलंकृत नक्काशी और नायाब शिल्पकला की झलक प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जिससे क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय रोजगार तथा आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों का सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय श्री रामदास अतावले जी। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष 10 पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, प्लीज दिखाना गलत है, फोटो दिखाना। आप बैठिएगा, कोई भी एग्जिबिट दिखाना गलत है। आप बैठिएगा, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। काइंडली बी सीटेड। नहीं, आप फर्स्ट प्लीज बी सीटेड। वी हैव टेकन अ नोटिस ऑफ योर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। राष्ट्रपति जी का भाषण है, उसके बाद में आपको मौका देंगे। आइटम नंबर 6, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। The table of the House, the documents mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, माननीय श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, माननीय श्री भूपति राजू वर्मा जी, श्रीनिवास वर्मा जी। Mr. Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 8 in the revised list of business for today, the 3rd February 2026. आइटम नंबर 9, माननीय श्री पवित्रा मार्गरेट जी। So with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 9 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 10, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2026 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्यों का निर्वाचन करे। प्रश्न ये है कि माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्तुत के पक्ष में हैं वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्तुत के विपक्ष में हैं वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी। I wish to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Public Accounts Committee for the term beginning on the 1st May 2026 and ending on the 30th April 2027. Thank you. प्रश्न ये है कि
श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। एक मिनट। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री अपराजिता सारंगी जी। Chairman sir, I rise to move that this house do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Public Accounts Committee for the term beginning on the 1st of May 2026 and ending on the 30th April 2027, and do communicate to this house the names of members so nominated by the Rajya Sabha. Thank you. प्रश्न ये है कि अभी माननीय श्री अपराजिता सारंगी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 माननीय श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय श्री शंकर लालवानी जी।